Hello everyone, welcome to Answer YouTube channel. Today we are going to learn about electric field. Okay, so this is the fourth class in continuation with the chapter of electric charges and field. So in the previous three videos we have learned about Coulomb's law. We have solved some problem based on it. Then we have learned about superposition principle, and also we have solved some problem on it. Okay, now let us try to understand what is the meaning of electric field. To understand the meaning of electric field, we need to understand first two things: what is source charge and what is test charge. Source charge, as the name suggests, source charge will be something like that which will become the source of electric field, and test charge is something which used to test the presence of that electric field created by this source charge. Okay, so हम लोग इन जनरल सोर्स चार्ज को Q से दिखाएंगे और टेस्ट चार्ज को Q नॉट से. तो सोर्स चार्ज का जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर उस टेस्ट चार्ज को हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो उसको या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगा, एंड दैट force of attraction and force of repulsion is the test of that electric field. So electric field is nothing but the area surrounding a source charge in which another test charge experiences a force of attraction or repulsion in it. Okay, so for example, अगर हम यहाँ पे assume करते हैं कि both source charge and test charge are positive in nature, तुम जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ लेके आएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. तो एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट एफ इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन. So force of repulsion will be away from the source charge and the displacement is toward the source charge. और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो दोनों ही अगर चार्ज हैं तो दैट मीन्स कि मुझे किसी न किसी तरीके से सोर्स चार्ज को अपने पोजीशन पे रखना पड़ेगा स्टेशनरी, और क्यू नॉट को मूव कराना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे क्यू को क्यू नॉट से काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा ताकि टेस्ट चार्ज से जो क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को डिफाइन करते समय हम सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को टेस्ट चार्ज के कंपेरिजन में ऑब्वियसली है थोड़ा ज़्यादा लेते हैं. ओके, सो if test charge is positive in nature and source charge is also positive in nature, source charge will create electric field in the radial direction like this, away from the charge. So electric field due to positive charge is in radial outward direction. Okay, so that's why when test charge is also positive, it will experiences a force of repulsion due to the source charge. Now, if I have to write the definition of electric field is numerically defined as force acting on the attached charge divided by its magnitude. Okay, or E is equal to F by Q naught. Or I can write force acting on the test charge as F is equal to Q naught into E. Okay, now if you look carefully at the formula of electric field, you can determine its SI unit. Since force is in Newton, charge is in coulombs, so SI unit will come out to be as NC minus 1 or Newton per coulomb. There is one more unit of electric field which is given by the potential formula. In the next chapter, we will learn about what is electrostatic potential. For the time being, let me show you electric field is given as negative gradient of potential minus dV by dr. Since potential is in volt and distance is in meter, so volt per meter or voltmeter inverse and Newton per coulomb or NC minus 1 both represent the same thing, that is electric field. Okay, now the definition part of electric field says that electric field is defined as it is the space surrounding a source charge in which another charge another test charge
experiences a force of attraction or repulsion. Okay, so electric field is a space surrounding a source charge in which another test charge experiences a force of attraction or repulsion. So these are the two things we have learned now about the electric field, about the formula and how to write down its definition using its own formula, and also to calculate its SI unit with the help of formula and with the help of electrostatic potential. Let us calculate the dimensions of electric field. So now we are again going to use this formula. E is equal to F by Q naught. So force का dimension होता है ml minus 2, and charge can be written as AT because I is equal to Q by T. So Q is equal to IT, and I is in ampere, T is in time, so 80. So overall electric field dimension will become as ml t minus 3 a power minus 1. Okay, so this is the dimension of electric field. And let us try to solve some question based on this topic of electric field. So first question is something like this: calculate the voltage needed. Calculate the voltage needed to balance an oil drop. Calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is the mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 6 kg, and यहाँ पे हमें g की वैल्यू लेनी है. टेक g is equal to 10 meter per second square. So this question was asked by the CBSE in 95 compared paper. CBSE 95. ओके, सो यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है जिससे कि हम एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस कर सके, जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑयल ड्रॉप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है 5 mm का. ऑयल ड्रॉप का मास है 3 × 10⁻⁶ kg. जी की वैल्यू में लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड. सो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें सारे वैल्यूज़ को एसआई यूनिट में रखना होगा. सो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इसको निकालने जा रहे हैं. तो हमें यहाँ सबसे पहले ये पता करना है वोल्टेज क्या होगा. अभी तक यहाँ पे वोल्टेज आया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरी है हम उसको थोड़ी देख सकते हैं. तो कैपेसिटर में क्या होता है, हमारे पास प्लेट्स है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा ना. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. अभी जो ऑयल ड्रॉप है ये हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीचों बीच रखा हुआ है, तो ऑयल ड्रॉप के पास जो चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है. So Q is equal to 10 E, that means 10 into 10, 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay,
ना ये ऑयल ड्रॉप जो है इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर की तरफ q इंटू ई फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल जाएगा, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि वोल्टेज कितना होगा। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आई थिंक यहाँ पे गैप दिया हुआ है d, और d की वैल्यू है 5 mm। सो d है 5 mm, मीन्स मीटर में कितना होगा 5 × 10⁻³ मीटर। नाउ when you divide the potential between the two plates by this gap, you will get the value of electric field. So E is equal to V by D. So अगर हम Q is equal to mg में V by D पुट कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। सो Q इंटू V by D इज इक्वल टू mg, और यहाँ से मैं V मिल जाएगा, V इज इक्वल टू mg/d डिवाइड बाई Q। ओके, तो सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। V इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ऑयल ड्रॉप का मास आई थिंक दिया हुआ कितना है 3 × 10⁻⁶ kg। सो लेट पुट द वैल्यू ऑफ मास एज 3 × 10⁻⁶ kg। g की वैल्यू 10 है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 5 mm, सो 5 × 10⁻³ मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये ms-2 हो जाएगा। q है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, सो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें जितने भी नंबर वाले टर्म में 3, 10 और 1.6 को एक साथ कर दिया मैंने, फिर 10⁻⁶ और 10⁻⁻3, 10⁻⁹ हो जाएगा, और ये माइनस, अच्छा ये एक 10 जो इसके साथ वो कट जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, +19, और ये हो जाएगा 3/1.6 can be written as 13/16. So this becomes -9 + 19 becomes 10. Okay, once again, mass of oil drop is given as -16. Okay, so mass we have to take as -16. So if I put -16 here, so -16 and -3 -19, so this term will get cancelled out automatically. So यहाँ पे मेरे पास केवल बचेगा 10⁻0। Okay, and 13/16 can be written as 15/8. So let me divide 15/8. Okay, one more value here it is missing, which is 5. So 5 will come here. So 5 will come here also. So I think to divide 75. Divide 75/8. So 8 9 is 72. Become 30. 8 3 are 24. It becomes 60. 8 7 are 56. Get 40. So 8 5 are 40. So V value you will get as 9.375 volts. Okay. So in this question we were asked to find the potential between the plates, and what we did, हमने सबसे पहले QE को mg के बराबर किया, फिर E की वैल्यू V/D होती है उसको E की जगह पुट किया, और वहाँ से
v आ गया mg/q. ओके. Now let us solve the second question. Now second question says a simple pendulum consists of a small sphere consists of a small sphere of mass small m suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directed vertically downwards. इसके बाद इसमें क्या पूछा है? Find the period of oscillation. Find the period of oscillation of the pendulum find the period of oscillation of the pendulum due to the electrostatic force due to the electrostatic force acting on the sphere. And the period of oscillation of the pendulum due to the electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of the gravitational force. Neglecting the effect of the gravitational force. इस क्वेश्चन में क्या, एक पेंडुलम है जिसका मास m है, उसको हमने थ्रेड से सस्पेंड किया है जिसका लेंथ l है. स्फीयर में एक पॉजिटिव चार्ज q है और पेंडुलम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E में रखा गया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है. मुझे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम बताना है जो कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आएगा. बिकॉज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि ये चार्ज Q जो है क्यू ई फोर्स क्रिएट करेगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ई का डायरेक्शन होगा. उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पेंडुलम मूव करेगा बिकॉज उसका एक कंपोनेंट जो है पेंडुलम को मूव कराने में हेल्प करेगा. तो मूव करने की वजह से पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, फिर मीन से फिर एक्सट्रीम पे आएगा, फिर वापस मीन पे जब आएगा तो उसका एक पीरियड कंप्लीट हो चुका होगा. उस टाइम पीरियड
की वैल्यू मुझे पता करनी है, दैट इज़ नथिंग बट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डायग्राम को बनाना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। ये मैं सपोर्ट हो गया, ये पेंडुलम का वर्टिकल पोजीशन हो गया, स्ट्रिंग, ये पेंडुलम का पोजीशन हो गया जिसमें कि वो स्विंग करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डाउनवर्ड दिखाना थी, मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये जो पेंडुलम है, ये ओ पॉइंट पे रिजिड सपोर्ट से सपोर्टेड है, इसका बॉब यहाँ पे है। मूव करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, तो ये जो मूवमेंट करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, रेड लाइन के लॉन्ग। तो ये भी परफेक्टली वर्टिकल है, एल लेंथ है इसका, मास एम है, ये एंगल थीटा अगर है। हमें यहाँ पे एम जी नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए बोला गया है। सो यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा उसमें वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, ये हो गया Q इंटू ई। इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट आएंगे उसको ड्रॉ करते हैं। एक अलॉन्ग द स्ट्रिंग ऐसे आएगा और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग ऐसे आएगा। तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। सो दिस बिकम्स क्यू ई कॉस थीटा, और क्यू ई कॉस थीटा को बैलेंस कौन करेगा? टेंशन। ओके, और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा, जो कि इसको ऑसिलेशन कराने में हेल्प करेगा। सो लेट अस सपोज कि इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में डिस्प्लेसमेंट एक्स करना पड़ा है। सो यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा लिखना होगा, तो अगर हम इसको लगभग परपेंडिकुलर मान लें इतना, ये एंगल 90 होगा, सॉरी ये एंगल जो है ये 90 होगा। साइन थीटा हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कितना होगा, एक्स अपॉन एल। ओके, सो एक्स अपॉन एल बिकम साइन थीटा। सो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन इसको मिल रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, इसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे। सो न्यूटन सेकंड लॉ जो है हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, इसमें क्या लग रहा है क्यू ई, और ये कंपोनेंट क्यू ई का साइन थीटा वाला। सो और डायरेक्शन जो है हमें अपोजिट दिखाना है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगेगा। सो एम ए बिकम्स माइनस क्यू ई, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स बाई एल। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, बिकॉज मास इंटू एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू ई इंटू एक्स बाई एल। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे मास पे इधर लेके आना होगा, तो क्यू ई बाई एम इंटू एक्स बाई एल, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई बाई एम एल
इंटू एक्स। सो ओमेगा आ गया कितना, अच्छा इसमें एक्स नहीं रहेगा, इसमें ओमेगा आ गया कितना, अंडर रूट क्यू ई बाई एल। सो वंस यू नो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। So this becomes 2 pi under root ml by QE. So this is your answer. So my time period क्या हो गया, 2 pi under root ml by QE. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के और कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो जाए तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट के अलावा दूसरा जो 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है उसको कैसे डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।